very good morning, everyone. Welcome to Self Classes, and we were discussing this paper, Journal Study 2024, History Geography portion. I have already uploaded, and today we are solving the paper. Question number 3. We are starting A, B, C, D, E. There are 5 questions. Okay, under question 3. So let's start with A. Do you think that realizations of the benefits of the potential demographic dividend that India is expected to experience roughly after 2025 is automatic? Give reason in support of your answer. Let's see how to write this answer. सबसे पहले तो ये समझना होगा कि what is potential demographic dividend. It means when the share of the working age population, जब कितना वो लोग वर्क करेंगे और नॉन वर्किंग एज से ज़्यादा हायर होगा लो होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. नाउ दे आर आस्किंग, it is automatically we can say in 2025 India expected to experience roughly the potential demographic dividend realizations. तो इसके लिए रीजंस देने थे, तो इसका आंसर आपको लिखना है 200 वर्ड्स में. तो you have to understand one thing clearly, that please write some facts also which uh, can give you a good marks. Okay, so let's see the answer. You can write in this way. So first of all, you have to say that it would not be easy to reap the rewards of the demographic dividend that is India predicted experience after 2024, और आप लिख सकते हो till 2025. ठीक है, मेन जस्टिफिकेशन आप इस तरह से दे सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. द प्रोडक्टिविटी ऑफ लार्ज यंग पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? Obviously, level of education and skill. If they get good education, good skill development, knowledge, then only they can do better for the Indians economy, right? So this is a major important point related with the demographic dividend. Another point number 2 is employment opportunities. India has to generate millions of jobs. This is really very important because India has a huge populations. Okay, so if we want to capitalize our demographic dividend, we have to increase our employment opportunities. And the expanding working age population could cause social instability and greater unemployment rates. Okay, अगर जॉब नहीं मिलेंगे तो, अगर क्रिएट नहीं किए गए. Then healthcare is really important for the betterment of our economy, our country, because productivity depends on what? Health. So healthy workforce is really important to keep people healthy and able to support the country economy. India must expand access and qualify its healthcare system. आप तो जानते ही हैं कि हेल्थ मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है, बट इंडिया में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डॉक्टर्स, उनकी फीस, ट्रीटमेंट, सब कुछ एक्सपेंसेस होता है. जो है एक्सपेंसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है. नंबर 4 है जेंडर इक्वालिटी. ये बहुत मतलब एक अजीब पॉइंट ये है कि हम लोग डेवलप तो कर रहे हैं बट स्टिल वी आर फेसिंग जेंडर अनइक्वालिटी. तो जेंडर इक्वालिटी इज क्रूशियल टू गारंटी जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस एंड इन एजुकेशन बोथ. एजुकेशन में भी और वर्क प्लेस में, दोनों में बहुत ज़रूरी है. वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कैन ग्रेटली एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. देन इकोनॉमिक पॉलिसी. गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा एक मतलब जिम्मेदारी है कि दे हैव टू ड्रॉ इन्वेस्टमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ये सारे जब पॉइंट्स पे वो ध्यान देती है, देन ओनली वी कैन हैव अवर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड दैट्स ड्यू टू इकोनॉमिक पॉलिसीज. ठीक है. तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बहुत सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को, इफ अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान देती है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. To promote economic activity and raise productivity, there must be enough infrastructure. उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी भी है, पावर भी है और ट्रांसपोर्टेशन भी, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही आता है. तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स का ध्यान देते हैं, then only we can say that the realization of the benefits of the potential demographic dividend that India is expected to experiment roughly after 2024. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन और आई होप आप लोगों को आंसर भी क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर बी. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर नेशनल प्लानिंग इज टू रिड्यूस रीजनल inequality and to ensure balanced growth. Why does India fail to achieve this goal?
दिस क्वेश्चन अगेन कनेक्टेड विद द सेम पॉइंट्स, फिर भी इसको थोड़ा सा लिखने का पैटर्न तो चेंज करना ही पड़ेगा, हम सेम तो लिख नहीं सकते, तो हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं. सो लेट्स सी हाउ यू कैन राइट दिस आंसर. India, yes, national planning. Planning Commission in India, we have planned so many things for our India development. But कहाँ पर कमी रह जाती है, problem कहाँ आती है? Let's discuss some points which is important as per the India's national planning. It seeks to guarantee balanced growth, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और lessen regional inequality. Regional areas में जो inequalities हो जाती है, because we have so many states, we have so many regional differences, तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं. हमें देखना है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसे कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं. हाउ वी कैन लाइक planning a good for our Indian national development. ठीक है, let's see some points which is related to these questions. Unequal resource distribution, it is an important point because it is easily explaining the quantity of natural resources varies throughout Indian region. Okay, Indian areas, rich states typically grow faster than poorer states. What is the reason? Because unequal resource distribution. कहीं पर बहुत अच्छे rich resources है, बट कहीं पर एकदम सैंड है, देयर इज नथिंग बट सैंड. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या जहाँ पर यहाँ पर अगर मैं कहूँ झारखंड में डेवलपमेंट जो होता है ट्रेड में, क्या सेम जो डेवलपमेंट है राजस्थान में हो सकता है? नहीं हो सकता है. बट व्हाट इज द रीजन? रीजन बिहाइंड इज अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इससे जो रिच स्टेट्स हैं दे बिकम मोर रिचर डे बाय डे एंड द पुअरेस्ट स्टेट बिकम पुअरर अगेन. ओके, then infrastructure differences. Infrastructure differences is very important point because urban areas में आप देखेंगे there are more advanced infrastructures, but क्या rural area में वो differences वो infrastructure आपको देखने को मिलता है? No. So this is another reason. Okay, and it is a lag behind for the India's development. तो मोर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है रूरल एरिया में भी, एंड दिस इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसी के अंदर आता है. ठीक है, एनर्जी, हेल्थ केयर, हर एक चीज़ में आप देखेंगे डिफरेंसेस मिलेंगे आपको अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में. देन इकोनॉमिक पॉलिसी, डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ ग्रोथ माइट अराइज फ्रॉम नेशनल पॉलिसीज, जो कि फेवर लेता है डेवलप्ड रीजन का. हमेशा जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाती है, ज़्यादातर उस पॉलिसीज में जो मेन सेंटर्स होते हैं वो एरियाज होते हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड कर रहे हैं. उन एरिया में पॉलिसीज को बहुत रेयर ही फंक्शनलाइज किया जाता है जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता. तो एरिया दैट आर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डेवलप्ड फ्रीक्वेंटली गेन फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन. इससे फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है एजुकेशनल और स्किल गैप की. एजुकेशन में भी आप देखेंगे नॉट एवरी रीजन हैज द सेम पॉसिबिलिटीज फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन. इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल बैंगलोर, एंड इफ आई talk about some village in Karnataka, okay, village in Karnataka, so what you thought, is that the same education and every possibility available in village as well as the Bangalore? These are the same? No, not at all. Nothing is same between these two things. So it can reduce our potential for economic growth. So we can add this point, educational skill gap. Then number 4 is political aspects. Local government and regional politics have an impact on growth. States with significant political clout or influence frequently get more funding. This is true. Where the minister is strong, only that state would lead most. और जहाँ पर मिनिस्टर स्ट्रांग नहीं है वहाँ का स्टेट को भी, वहाँ के एरिया को भी कुछ क्या करना पड़ जाता है, थोड़ा पुल बैक करना पड़ जाता है. देन माइग्रेशन, those who leave less developed area behind with shrinking labor force and stagnant growth travel to cities in search of better possibility. ये बहुत बड़ा एक रीजन है माइग्रेशन का. अब यहाँ इस माइग्रेशन को लेकर झमेला भी होता है लोगों में. आप देखेंगे कि दे हैव डिफरेंसेस इन देयर थॉट्स, देयर कम्युनिकेशंस आल्सो. बट प्रॉब्लम तो यही है कि अगर कहीं पर बेटर जॉब्स मिलते हैं
ठीक है, बेटर जॉब्स कहीं पर अवेलेबल होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एजुकेटेड पर्सन है या जो यूथ है वो वहाँ पे माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, बट इससे भी प्रॉब्लम है, इससे भी इंडिया को ही दिक्कत हो, इंडिया की डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है। देन एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम की पॉलिसीज बनती हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट के डिसीजन भी होते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, वो पॉलिसीज ठीक से काम नहीं कर पाती बिकॉज करप्शन जो है वो डिफरेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड दिस फ्रीक्वेंटली दैट द गोल्स ऑफ इनिशिएटिव इंटेंडिंग टू एलिविएट रीजनल इनइक्वालिटीज और इनइक्विटीज। ओके, सो ये है पैटर्न जिस तरह से आप अपने आंसर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखा सकते हैं एंड यू कैन राइट योर आंसर इन अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। इफ़ यू लाइकिंग द क्लास प्लीज पुट द लाइक बटन ऑन दैट, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू सौरभ सर क्लासेस एंड इट हैज़ इट्स ओन वेबसाइट। तो वेबसाइट का एड्रेस भी आपका यहीं पर है, www सौरभ सर क्लासेस। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वी हैव एवरीथिंग, वी हैव स्टडी मटेरियल, क्लासेस, डेमो सेशंस, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए, विल सॉल्व सी डी। ओके।